Now, the next topic is effect of change in temperature. So, whenever this topic is coming, so before this, you please recall your memories about the solid, about the liquids, about the gases. Means ki the properties, the introductions, कि why they are known as a liquid state, why they are known as a gaseous state, why they are known as a solid state. तो ये सारा अपने दिमाग में लाइएगा. इसका मतलब सिंपल सी बात, दो चीज़ें दिमाग में रखो. मैंने बोला intramolecular space between the particles, either that is the solid, liquid and gases, whatever it is. And then the another thing is the intramolecular force of attraction. This is another very simple. So now it means कि ना the order of particles of force of attractions. Force of attractions आपका नाम in the three states of matter as below. As follows भी आप लिख सकते हैं. तो देखो, gas is less than liquid is less than solid. Intramolecular space is the last. Intramolecular space is moderate. Intramolecular space is the least. Means every particle is very close and the closest to each other. आपका ये हो गया analysis. अब आपने इनको temperature दिया. You are giving the temperature to either the gas, the liquid and the gases. So now see. So now on increasing temperature, जब आप इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, then the interparticle force of attraction, yes, interparticle force of attraction, IPFA, this is आपका नाम होगा. this is, तो ये आपका नाम, ये आपका attraction डिक्रीज, ये आपका डिक्रीज करेगा because of काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे एंड द फॉर्मूला इज आपका mv स्क्वायर होता है. देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ द बॉडी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल और द बॉडी. आप इसमें कह सकते हैं आपका देखो, क्योंकि बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स increase. आप गर्म करें when you are heating up, when you are just increasing the temperature, so the kinetic energy of the particles increases, due to which motion of particles increases. और जब increase कर जाएंगे तो hence force of attraction decreases. Simple. When the mama is giving the slap on your cheek, गुस्से में, mama is very much angry. आप कहेंगे छोड़ यार, मम्मी बड़ी गंदी है. इसका मतलब जो love of attraction है मम्मा का, love है attraction है, that थोड़ी देर के लिए minimize हो जाएगा. वो यहाँ भी तो force of attraction decreases. Thus we can say that on increasing temperature, जब आप increase करें temperature तो ना जो solid होंगे can be changed into liquid and liquid can be changed into इसका सिंपल. सॉलिड को आपने क्या किया, यू आर हीटिंग, यानी कि टेम्परेचर यू हैव गिवन, so it is going to be converted into liquid, and when this liquid is
again आपका you have given the temperature means heat कर रहे हैं आपका, so the gases state is coming आपका तो इसका मतलब उल्टा कर दीजिएगा, similarly on decreasing the temperature, अगर आप टेम्परेचर को आपका डिक्रीज कर देते हैं इसका मतलब सिंपल सी बात है, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, मोशन ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेज हो जाएंगे, जो दैट इज इसका काइनेटिक एनर्जी आपका देखो, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज होगा, वाई डिक्रीजेस आपका नाम, क्योंकि विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Fa फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस, तो कूल होने में आपका इंक्रीजेस हो जाते हैं, हैंस तो अब जो गैस होगी आपका ना देखो, गैस can change into liquid and liquid can change into solid हो गया देखो, इसका गैस, गैस को आपने क्या डिक्रीज टेम्परेचर, जिसको आप कहते हैं कूल करना, so it will be converted into liquid, और फिर when you are cooling to the liquid it is going to be converted into the solid आपका नाम, तो पहले आप इतना करिए फिर आगे इसको फाइनल कर देते हो फिर ना। इन द लास्ट टॉपिक मीन्स आज का सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, जिसको आप मेल्टिंग कहते हैं आपका नाम, तो अब आपका ये दिस इज द सॉलिड, सॉलिड को आपने क्या किया, जब आपने यू हैव सप्लाइड द हीट, आपने हीट सप्लाई किया आपका नाम, इसका मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, एंड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, ये जो आपका है ऑफ इट्स आपका कॉन्स्टिट्यूट आपका पार्टिकल्स आपका ना देखो, एंड when kinetic energy is increased, तो due to आपका नाम which their motion increases, उनके मोशन में भी आपका नाम, उनकी गति में भी आपका इंक्रीमेंट आ जाएगा आपका नाम, और if the temperature is further supplied, और फिर आपने और टेम्परेचर उसको जो है आपने फर्दर सप्लाइड किया अपना देखो, इसका मतलब नाउ फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर एंड मोर आपका हो जाएगा, एंड द मोशन विल बी इंक्रीज मोर एंड मोर आपका हो जाएगा, सो नाउ इन द फॉर्म ऑफ आपका नाम हीट ओवरकम का था, ब्रेक हो जाती है, याद ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा, आपका ब्रेक कर देगा आपका ना देखो, एंड हैंस, और तब आपका ना देखो दिस द वन स्टेट कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट, एक स्टेट आपका अनदर स्टेट में आपका हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल, सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, तो सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब द मिनिमम कम जिसका आप कहते हैं, तो जो मिनिमम टेम्परेचर है एट विच solid needs to आपका नाम become a
liquid at the atmospheric, now this is the temperature, P-R-E-S-S-U-R-E, pressure, is called, this is the MP, मध्य प्रदेश नहीं है, this is not a मध्य प्रदेश, this is the melting point of cover. इसका मतलब क्या होगा कि द जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका, ना देखो, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, दिस इज STRENGTH, जल्दीबाजी में लिख रहा हूं तो पूछ लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, this is force of attraction between the particles. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसका मतलब जब आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, देखो फ्रीजर से आप आइस निकालो तो आप वहां पे टेम्परेचर क्या है, सपोज -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -9 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये देखिए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर आप इसको 273.15 केल्विन, ये दो मेजरमेंट्स होते हैं, दो पैमाने होते हैं आपका, नाम देखो, दिस इज द, तो जो आपका जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट आपका। और अगर आप इसको केल्विन में पूछेगा कोई तो 273.15, और ऐसे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक, दो प्रकार के आपका सल्फर होते हैं, तो इसमें रोम्बिक सल्फर, आप सिंपल सल्फर भी आप कह सकते हैं, ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका नाम याद रखिएगा, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और जब आप केल्विन की बात करेंगे तो आपका 368 केल्विन है। आप कैंडल जलाते हैं, कैंडल, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स का मतलब आपका कितने डिग्री में होता है, जिस समय जली होती है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इफ यू विल सी इट आपका 336 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट का मतलब आपका नाम लेटेंट, इसका मतलब आपका हिडन होता है। तो कभी कभी आपको कोई पूछ सकता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid, ये देखो आपका लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स MP मेल्टिंग पॉइंट इज known as latent heat of fusion। दो होते हैं, फ्यूजन एंड फ्यूजन। एक का मतलब होता है ब्रेक करना और एक का मतलब कंबाइन करना है यहाँ पे, तो दिस इज द फ्यूजन, दिस इज द फ्यूजन। एनी कंफ्यूजन? नो फ्यूजन प्लीज। क्या कह रहे हैं अंकल?